حقیقت کو پہلے نہیں سمجھا، نتیجے آئے تب بھی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہے. اس لیے بہت سمبھو ہے کہ لوک سبھا چناؤ کے اگلے دور میں بھی ادھر ادھر کی چرچائیں چلتی رہے اور نیتا برادری غفلت میں بنی رہے. اس پر چرچا کے لیے آج میرے ساتھ وریشٹھ پترکار نیرجا چودھری ہے. نیرجا جی، نتیجوں کو دیکھنے کے بعد کیا آپ یہ مانیں گی کہ لوگ اور راجنیتک دل، پارٹیاں اور میڈیا کل ملا کر چناؤ کو لے کر غفلت میں زیادہ رہے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے جی. کیونکہ یہ دیکھنا نہیں کہ اتنا بڑا لینڈ سلائیڈ ہے جی. جو کہ کانگریس کے خلاف ہے، اور اپنی ہی دنیا میں رہنا. جی. اور آپ کے فینومینن کو تو میں نے سنا، اتنے لوگوں نے کہا کہ کیا کون اروند کیجریوال اور کیا آپ. جی. تو غفلت میں تو رہے ہیں. جی. یا تو صحیح میں نہیں معلوم تھا، جی. یا پھر اوروں کو بیوقوف بناتے رہے، جی. یا اپنے آپ بیوقوف بنتے رہے. جی. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو فیڈ بیک تھا، جو دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ سیٹیں پریڈکٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جی. لیکن دلی میں جو دکھائی دے رہا تھا سب کو، جی. اس کو اکنالج نہیں کرنا. جی. تو یہ مطلب ایک مجھے لگتا ہے کمپلیسنسی ہی نہیں، ایک ایروگنس ہے جی. جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ نہیں، رہا ہے. لیکن نیرجا جی جس طرح، اور پھر میرا یہ کہنا ہے کہ اس سب کا جو ہے فلوپ، اس سب کا کارن راہل گاندھی کو فلوپ قرار دینا، کیا یہ نہیں لگتا کہ پچھلے 3-4 سال سے انا ہزارے کے آندولن کے ساتھ میں جس طرح منموہن سرکار، پردھان منتری منموہن، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے کارن سب کچھ پکڑا تھا؟ مطلب حقیقت نظر آ رہی تھی کہ یہ سب گڑبڑ ہو رہی، بھلے مہنگائی ہو، بھرشٹاچار ہو، جن کارنوں کے اوپر جو مدعے نکل کے آتے ہیں ان سب کے اوپر باوجود اس کے سرکار اور ڈاکٹر منموہن سنگھ پر فوکس نہیں بننا، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اگر اس کا دوش جو ہے لینا ہے جی. تو پوری پارٹی کو لینا پڑے گا. جی. اس میں جو کانگریس کے پردھان منتری، پارٹی کیوں؟ پردھان منتری منموہن سنگھ اور ان کے منتری کیوں نہیں؟ بالکل پردھان منتری اور ان کے منتری تو چہرہ ہے نا جی. اس پارٹی کے. نہیں تو چہرہ ہی تو ری ایکشن پیدا کرتے، چہروں کی تو لڑائی ہے. اور جو ایروگنس آ رہا تھا وہ ان چہروں سے آ رہا تھا. جی. یہ میں مانتی ہوں کہ آج صرف راہل گاندھی کو سنگل آؤٹ کرنا، پہلے تو راہل گاندھی کو سنگل آؤٹ کرنا جو ہم کئی بار چرچا کر چکے ہیں کہ پہلے تو کہنا کہ گھوڑے پہ آؤ اور چابک چلاؤ، میجک وہ کر کے آپ ہمیں جتاؤ، اور نہیں جتاؤ گے پھر ہم آپ کو دوشی قرار کر کے وہاں بٹھا دیں گے، جو کہ آج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی. بیسکلی دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ بھرشٹاچار، مہنگائی مین کارن رہا ہے، پر اس سے بھی ادھک ان مدوں کو لے کے ایک ایروگنس جو رہا، ارے یہ تو گلوبل فینومینا ہے، ارے لوگوں کا پرچیزنگ پاور تو بڑا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ چاروں چناؤ کے الیکشن میں نیشنل سینٹیمنٹ جو ہم کہتے ہیں اگینسٹ گورنمنٹ، یو پی اے 2 گورنمنٹ، اس نے بھی کام کیا ہے. حالانکہ اسٹیٹ فیکٹرز رہے ہیں، اسٹیٹ سیٹرپس کی چھوی رہی ہے، کلیئر لیڈرشپ لوگوں نے چاہا ہے، وہ سب چیزیں رہی ہیں. اس کے ساتھ میں پھر جو کل سے جو بحث چل رہی ہے وہ بحث یہ کہ یہ چھترپوں کی جیت ہے، نریندر مودی کی جیت ہے نہیں ہے، مطلب نریندر مودی نے کمل نہیں کھلایا ہے، یہ جو ایک تھیوری چل رہی، یہ آپ ابھی یہ غفلت والی بات نہیں مانتی یا اس میں کیا مانتی ہے؟ دیکھیے، یہ بھی یہ کہنا جیسے راہل یا تو مین دوشی راہل ہے، اس طرح کا ہی سٹینڈ لینا ہے کہ صرف نریندر مودی نے ان کی ہوا سے ہوا ہے. یہ سب بھی ایک پورے ڈفرنٹ فیکٹرز کا وہ ہے. نریندر مودی نے کاڈر کو گیلونائز کیا بھاجپ کے، جو کہ وہاں جا کے لڑا ہے. نہیں پر کاڈر کے ساتھ میں یہ نہیں کہ انہوں نے ایجنڈا بھی سیٹ کیا، انہوں نے بالکل مطلب کیا پرچار کیا، انہوں نے ساری کچھ اگر دھوری ہے تو وہ سب کچھ وہ دھوری نہیں بنے. میں کسی بھاجپ کے آفس بیرر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ایک اسٹوڈیو میں، میں نے ان سے کہا آپ بہت دنوں سے دکھائی نہیں دیے دلی کے. انہوں نے کہا میں 6 مہینے گھر نہیں لوٹا. کہاں تھے؟ راجستھان میں کام کر رہے تھے، آپ کے آفس بیررز لگے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے نا بھاجپ نے جو کلر انسٹنکٹ دکھائی ہے، مودی نے گیلونائز کیا ہے، مودی کی میٹنگز بہت ہوئی ہیں، مودی نے محنت کی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایجنڈا سیٹ کیا ہے،
उनका रोल था, लेकिन स्टेट सैट्रप्स का भी रोल और था, संगठन का भी था, आरएसएस पूरा एक संगठन, तो तमाम तरह की कुल बातें। मिला के जो पिक्चर आई है, उन्होंने धक्का दिया है, लेकिन और चीजें भी काम करती थी। मान लीजिए, मैं मानती हूं अगर मोदी का सिर्फ मैजिक होता तो 2/3 आनी चाहिए थी दिल्ली में। नहीं, देखिए आप जरा ये इस तरह सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं होता, तो क्या आज 4 राज्यों में जीती हुई होती? आप जाइए कि आप हर्षवर्धन अगर वो सहारा नहीं देते, या विजय गोयल के उसी अंदाज में अगर बिना नरेंद्र मोदी हो रहा था, तो क्या लगता है आपको नहीं कि बीजेपी नंबर 3 होती और कांग्रेस मेन फाइट में होती? कांग्रेस और आप में मुकाबला नहीं होता? वो सही, वो हो सकता है आपको 2/3 मिल जाते हैं, हाँ, आपको मिल जाता, बिल्कुल, ये हो सकता है, लेकिन ये तो फिर मानना हुआ कि नेशनल मूड ही नहीं हुआ। नेशनल मूड कांग्रेस नहीं, अगर नहीं, यही तो मेरा कहना है कि नेशनल मूड अगर बना है, मनमोहन सिंह के कंट्रास्ट में बना, तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से बना है, कि न कि भाजपा की या दूसरा। अगर अडवाणी होते आज उस जगह, तो क्या लगता है आपको कि अडवाणी ये जितवा देते? वो बिल्कुल बात आपकी सही है कि मोदी ने कंट्रीब्यूट किया, और मैं मान लीजिए, मैं तो मानती हूं एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन लेकिन लोकसभा में वो मेजर फैक्टर होने वाले हैं, क्योंकि लोगों का जो मूड है वो एक डिसाइसिव लीडर के लिए है, क्लैरिटी के लिए है, और दूसरी तरफ कोई डिसाइसिव लीडरशिप नहीं है जी। अब ये कहां ले जाएगा, और खासकर ये भी जो कल से निकला है चुनावों के नतीजों से, वो ये है कि जहां भाजपा की टक्कर कांग्रेस से है, या भाजपा प्लस एलाइज की टक्कर कांग्रेस प्लस एलाइज से है, उन क्षेत्रों में जो मूड दिखा है, उससे लगता है कि प्रेफरेंस भाजपा की तरफ होने वाला है लोगों का। केजरीवाल फैक्टर क्या एक धुरी बनाते हैं, मतलब केजरीवाल फैक्टर अब नरेंद्र मोदी के विरोधियों की एक उम्मीद बन गए। हाँ, ये भी एक दिल्ली के उस प्रयोग से, पर ये भी मेरा मानना गफलत वाली बात है, लेकिन इस गफलत के अलावा कोई दूसरे चारा भी नहीं है कि और कोई पाली जाए। वो भी सही है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, उनके पीछे पूरी एक जो जमात है, जमात भी नहीं है जी। केजरीवाल एक देश के मूड को दर्शा रहे हैं, और वो मूड चाहता है नई पॉलिटिक्स को। अब वो कैसे उभरेगी अगले 4-5 महीने में, क्या शेप लेगी, वो देखने लायक बात है। जी निर्जा जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सिंगापुर में बड़े पैमाने पर तशद्दुद, 24 हिंदुस्तानी समेत 27 अफराद गिरफ्तार। इराक में मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके, कम अज कम 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। साबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी को रिश्वत सितानी के मामले में समन जारी। अदालत ने 23 दिसंबर को पेश होने का दिया हुक्म। और थाईलैंड में पार्लियामेंट तहलील, आम इंतखाबात का ऐलान, इसके बावजूद अपोजिशन का एहतजाज जारी। और अब खबरें तफसील से। सिंगापुर में हिंदुस्तानी नजाद एक शख्स की बस हादसे में हुई हलाकत के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद भड़क उठा। बरहम हुजूम और सिंगापुर पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई और सिंगापुर पुलिस ने जनूबी एशियाई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले कम अज कम 27 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगापुर में इस किस्म का तशद्दुद गैर मामूली वाकया है। सड़क हादसे में एक शख्स की हलाकत के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद भड़क उठना भले ही दुनिया के कई मुल्कों के लिए मामूली वाकया हो सकता है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा होना यकीनन हैरत की बात है। सिंगापुर के एक पुलिस अफसर के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल से ज्यादा अरसे में सिंगापुर में इस किस्म के तशद्दुद का ये पहला वाकया है। तशद्दुद की शुरुआत तब हुई जब लिटिल इंडिया नाम से मशहूर जिले में एक निजी बस से कुचलकर 35 साल के एक हिंदुस्तानी नजाद शख्स की मौत हो गई। इस हादसे के बाद तकरीबन 400 गैर मुल्की मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। पुरतशद्दुद भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में आग लगा दी। इस झड़प के दौरान 18 अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार हैं। अब सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। इस वाक़े के बाद सिंगापुर में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने एक बयान में कहा है कि सिंगापुर के लिटिल इंडिया जिले में हुए हादसे और उसके बाद फूट पड़े तशद्दुद की जांच सिंगापुर इंतजामिया कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तानी हाई कमीशन सिंगापुर इंतजामिया के राब्ते में है। बस हादसे में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी नजाद शख्स के पसमानदगान को माली इमदाद फराहम कराने की भी कोशिश हो रही है। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि तशद्दुद की वजह जो भी हो, लेकिन तशद्दुद भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंगापुर में तशद्दुद भड़काने के मामले में कसूरवार पाए जाने वालों के लिए 7 साल की जेल और कोड़े मारने की सजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इराक में आज हुए बम धमाकों में 21 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हुए हैं। कुछ बम धमाके सड़क के किनारे हुए तो कुछ कार बम फटने से हुए हैं। इराक में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया कुछ दिनों से तकरीबन हर रोज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके हो रहे हैं। कहीं कार बम धमाके किए जा रहे हैं तो कहीं अवामी मकामात पर बम नस्ब करके उसे उड़ा दिया जाता है। पीर को भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसा ही हुआ। पीर को हुए कई बम धमाकों में 17 से जायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बगदाद से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर बोहरिस शहर के एक कैफे के बाहर हुए कार बम धमाके में 11 से जायद अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए। बगदाद के जुनूब में दारुल हुकूमत से थोड़े ही फासले पर सड़क के किनारे हुए एक बम धमाके में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। इस धमाके से थोड़ी ही दूरी पर फौज के गश्ती दस्ते को निशाना बनाकर बम धमाका किया गया।
उस धमाके में एक फौजी जवान हलाक और 2 जख्मी हो गए। इसके अलावा बसमाया जिले में एक खुले बाजार में हुए बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। ख्याल रहे कि इतवार के रोज भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 8 बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में कम से कम 39 अफराद हलाक हो गए थे। इराक में रवां साल दिसंबर के दौरान तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक कम से कम 147 अफराद हलाक हो चुके हैं। इराक में रवां साल अप्रैल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन के बाद तशद्दुद के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान की एक अदालत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को रिश्वत के 3 मामलों में समन जारी किया है। जरदारी के वकील ने आज अदालत से कहा कि सिक्योरिटी के पेश नजर आसिफ अली जरदारी अदालत में हाजिरी से कासिर हैं, लेकिन अदालत ने उज़्र मुस्तरद करते हुए जरदारी को 23 दिसंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। बाज़ार की पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जरदारी के खिलाफ रिश्वत सतानी के मामले में केस दर्ज किया है और उनके सदर के ओहदे से हटने के बाद इन मामलों की समाअत हो रही है। पाकिस्तान की मियां नवाज शरीफ हुकूमत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क के साथ गद्दारी के मामले में चार्जशीट को हतमी शक्ल दे दी है। इस चार्जशीट की बुनियाद पर 3 जजों पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत समाअत करेगी। ये खुसूसी पैनल नवाज शरीफ हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने तश्कील दिया है। चार्जशीट में नवाज शरीफ पर मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने और निजाम अदलिया को कमजोर करने जैसे कई इल्जामात आयद किए हैं। पाकिस्तान की एक अदालती ट्रिब्यूनल ने अमेरिका को उसामा बिन लादेन की इतला देने वाले डॉक्टर की अर्जदाश्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। अदालती ट्रिब्यूनल डॉक्टर शकील आफरीदी की अर्जदाश्त पर 18 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। डॉक्टर शकील आफरीदी ने अपनी अर्जदाश्त में दोबारा ट्रायल किए जाने की अपील की थी। डॉक्टर शकील आफरीदी को पाकिस्तान की ही एक अदालत ने मुल्क के साथ गद्दारी और फर्जी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का कसूरवार करार देकर 33 साल कैद की सजा सुनाई थी। डॉक्टर आफरीदी मई 2011 में अमरीकी ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन की हलाकत के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। अमरीकी दिफा चेक हेगल और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान आज इस्लामाबाद में ड्रोन हमले और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर कई अहम उमूर पर बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ के साथ भी बातचीत की। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जारी अमरीकी ड्रोन हमले रोके जाने की अपील दोहराई। वाज़ेह के चेक हेगल अफगानिस्तान के अचानक दौरे के बाद पाकिस्तान आए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा का ये पाकिस्तान दौरा इसीलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इन दिनों अफगानिस्तान के साथ अमरीका के सिक्योरिटी माहिदे को लेकर हामिद करजी और अमरीकी हुकूमत के दरमियान रस्साकशी चल रही है। अब्दुल बासित हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर होंगे। इस बारे में पाकिस्तानी हुकूमत अनकरीब बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। पहले पाकिस्तान ने इब्न अब्बास को हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की हैसियत से भेजने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने इस मंसूबे में तब्दीली करते हुए अब्दुल बासित को हाई कमिश्नर बनाने का फैसला किया है। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना।
टाइगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लखनऊ में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के सरकर्दा लीडर मोहम्मद बदी के खिलाफ मुकदमे की समाअत आइंदा साल फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद बदी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के कई कारकुनों पर मोहम्मद मुर्सी की माजूली के बाद मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम है। वाज़ेह है कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के 2000 से ज्यादा अफराद पुलिस हिरासत में हैं। मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी में आज पुलिस ने दाखिल होकर मुर्सी हामी एहतजाजियों पर जमकर मजालिम ढाए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुर्सी हामी एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने कई तलबा को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह मिस्र की फौजी हिमायत वाली हुकूमत ने नया कानून बनाकर एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस कानून पर अमल दरामद करते हुए मिस्री पुलिस मुर्सी हामियों के खिलाफ शिकंजा कसने में मसरूफ है। इंडोनेशिया में एक मुसाफिर ट्रेन के तेल टैंकर से टकराने से कम 7 अफराद हलाक हुए। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में दोपहर के वक्त यह हादसा पेश आया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तेल टैंकर की पटरियों पर मौजूदगी को देखते हुए ट्रेन के इंजीनियर ने 2 मरतबा वार्निंग हॉर्न बजाया और ट्रेन को रोकने की भी कोशिश की, ताहम तेज रफ्तार ट्रेन तेल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे के बाद तेल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और जाए हादसे पर आग लग गई, जबकि ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में तकरीबन 500 अफराद सवार थे। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुयोटो अस्पताल मुंतकिल किया गया। Yang meninggal ada 2 orang. Untuk yang di rumah sakit Dr. Suyoto ya, 2 orang saat ini ada di ruang jenazah rumah sakit Dr. Suyoto. Keseluruhan jumlah kita 72 orang. Kereta ini udah klason 2 kali, klason dan ngerem. Ternyata ada truk yang ada di tengah. Ada di tengah itu, dia ternyata pikir masinis mau jalan, ternyata nggak jalan, dihajar sama kereta ini. इस हादसे में ट्रेन के इंजीनियर और एक टेक्नीशियन की भी मौत हुई है। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच का आगाज कर दिया गया है। ट्रेन कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन के तमाम सिग्नल कारकर्द थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दुनिया भर के मुल्कों से लीडरान का ममलिकतों के सरबराहान की जनूबी अफ्रीका रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान से भी सदर जमहूरिया हिंद की क़यादत में आला सतह का एक वफ्द आज ही जनूबी अफ्रीका रवाना हो रहा है। वफ्द में सदर जमहूरिया हिंद के साथ सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और दीगर जमातों के लीडरान भी जनूबी अफ्रीका रवाना हो रहे हैं। ख्याल रहे कि नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात 15 दिसंबर को अदा की जाएगी। थाईलैंड में हुकूमत ने पार्लियामेंट तहलील करते हुए नए सिरे से इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। ताहम हुकूमत के इस ऐलान के बावजूद हजारों अफराद ने आज सड़कों पर एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत कर रहे ग्रुपों ने मुल्क में पीपुल्स काउंसिल की तश्कील का मुतालबा किया है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत के बाद बहरान को मजीद संगीन होने से रोकने के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी को तहलील करने और मुल्क में नए सिरे से इंतखाबात कराने का ऐलान किया। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात 2 फरवरी को मुनक्किद होंगे। थाईलैंड के आईन के मुताबिक पार्लियामेंट की तहलील के
60 रोज के अंदर इंतखाबात मुनक्किद करना जरूरी है। कबल अज़ीं थाई वज़ीर-ए-आज़म यिंगलुक शिनावात्रा ने टेलीविजन पर अपने खिताब में मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा इंतखाबात तक वो अबूरी हुकूमत की निगरानी करेंगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट की तहलील की हुकूमत के ऐलान के बावजूद एहतजाजी मुजाहिरीन ने सरकारी दफातर का घेराव किया। मुजाहिरीन का कहना है कि यिंगलुक शिनावात्रा किसी भी सूरत में इक़्तिदार पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। It's not the solution at all. Actually, this is just another trick, another lie from the government, because they're still in charge everything in this country. They want to totally control the next election, which means they're gonna go back and corrupt again. ยุบสภาก็ยังไม่พ้นนะยังไงเราก็ต้องทำต่อเพื่อให้ประเทศนี้เข้าสู่รัฐธรรมนูญที่ปฏิรูปประเทศใหม่เพื่อขจัดคนที่โกงกินบ้านเมืองให้พ้นจากประเทศไป इस दौरान थाईलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाजियों से अपने घर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस एहतजाज की वजह से मुल्क की शबीह को नुकसान पहुंच रहा है। สอรส.ขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้ได้ร่วมมือร่วมใจที่จะกลับคืนสู่ภูมิลำเนาของท่าน वाज़ेह है कि थाईलैंड में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। एहतजाज की क़यादत करने वाले ग्रुपों का कहना है कि मुल्क में नए सिरे से इंतखाबात से मौजूदा बहरान हल नहीं होगा। एहतजाजी ग्रुपों ने इंतखाबात के बजाय पीपल्स काउंसिल की तश्कील का मुतालबा किया है। उधर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ताल्लुक से हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। यहाँ ये तस्करा जरूरी है कि 2006 में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इंतखाबात के बायकॉट की वजह से पैदाशुदा बहरान के बाद ही फौजी बगावत की राह हमवार हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म यिंगलुक शिनावात्रा के भाई थाकसिंग शिनावात्रा को इख्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। थाकसिंग शिनावात्रा को बदनवानी मामलों में कसूरवार करार दिया गया है और वो सजा से बचने के लिए इस वक्त दुबई में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा सियासी बहरान दरअसल थाकसिंग शिनावात्रा को वतन वापस लाने की कोशिश का नतीजा है, जिसका खमियाजा उनकी बहन वज़ीर-ए-आज़म यिंगलुक शिनावात्रा को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर यूक्रेन में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज बदस्तूर जारी है। यूरोपीय यूनियन से तिजारती मुआहदा मनसूख करने के बाद मुल्क भर में शुरू हुआ एहतजाज संगीन रुख इख्तियार कर गया है। मुजाहिरीन दारुल हुकूमत केवी में सरकारी इमारतों के अलावा इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर खैमाजन हो गए हैं और सदर के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का आज़म जाहिर किया। इसी दौरान अदालत की जानिब से सरकारी इमारतों से एहतजाजियों को निकाल बाहर करने की डेडलाइन के पेश नजर वसी पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। समझा जा रहा है कि हुकूमत एहतजाज को बजोर खत्म करने की कोशिश में है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर यात्सिनकी ने मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हुकूमत को इंतबाह दिया है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोच बहरान पर काबू पाने की गर्ज से साबिक सुदूर से मुज़ाकरात के लिए राजी हुए हैं। आलमी मंजर का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।